Shall we look to the Lord again in prayer? और आइए फिर एक बार हम प्रभु को प्रार्थना में देखेंगे। Thank you, loving Heavenly Father. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद। Thank you, Jesus, for your presence in our midst. यीशु मसीह, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद हमारे बीच में। Although we are physically so far away, प्रभु, इसके बावजूद कि हम शारीरिक तौर पर इतने दूर है, in your love, we have been united in your love at your feet. पर आपके प्रेम के वजह से हम आपके चरणों में एक एक हो गए हैं। And we want to hear from you alone, Lord Jesus. और प्रभु, आज केवल और केवल हम तुझी से सुनना चाहते हैं। You alone have words of eternal life. प्रभु, केवल तेरे पास ही अनंत जीवन के वचन है। Speak to our hearts and encourage us. हमारे हृदयों से बात कर, हमें प्रोत्साहित कर प्रभु, Let your name be glorified. और तेरे नाम को महिमा मिले। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. Amen. आमीन। So I consider it a great privilege to speak to you, dear brothers and sisters in Navi Mumbai and many North Indian churches. और मैं इसे बड़े सौभाग्य की बात मानता हूं कि आप भाई बहनों के साथ जो नवी मुंबई में है और कई उत्तर भारत के कलीसियाओं में जो आप है, कि आपसे मैं आज साझा कर पा रहा हूं। As medical doctors in our Christian Medical Fellowship and all, we hear a lot about North Indian missions, uh, many need in North Indian states, how so much of darkness in terms of idolatry and so much of corruption is there in northern parts of India. और क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, तो जब हमारे मसीही डॉक्टरों की कोई सभा होती है, तो कई बार मैंने उत्तर भारत के जो मिशन है उसके विषय में सुना है कि वहां कैसे बहुत ज्यादा अंधकार है। मूर्ति पूजा आज भी बहुत वहां चल रही है, और किस तरह का वहां भ्रष्टाचार है। And as a young medical student, I have prayed to the Lord, Lord, if it is your will for me to work in some part of North India in some way, please send me. और मैं जब एक जवान मेडिकल डॉक्टर था, तो मैंने भी प्रभु से मांग की थी, प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि मैं कहीं उत्तर भारत में एक मेडिकल डॉक्टर के तौर पर जाऊं, तो कृपया तू मुझे वहां भेज। But things didn't turn out like that. God has allowed us to be partly settled here in South Kerala. पर ऐसे हुआ नहीं, प्रभु ने हमें अनुमति दी कि यहाँ हम दक्षिण केरल के भाग में हम बसे। And I hear that our churches in Navi Mumbai and Pune and many other brothers there and reaching out to many parts of North India and so many people being gripped by the true gospel. और मैं सुन पाता हूँ कैसे नवी मुंबई की हमारी कलीसिया और पुणे की कलीसिया के जो भाई हैं, वो उत्तर भारत के कई अन्य जगहों तक पहुंच पा रहे हैं, और कई लोग इस सुसमाचार से जकड़े जा रहे हैं। How our literature blesses many people, and so many people are blessed, and how they are coming closer to the Lord. कैसे हमारे किताबों के द्वारा कई लोग आशीषित हुए, और कैसे वो परमेश्वर के और नजदीक आ रहे हैं। Brother Abu asked me if I can share a brief testimony before I begin from the word. और भाई अबू ने मुझसे कहा कि साझा करने से पहले अगर मैं संक्षिप्त में अपनी गवाही बांट पा सकता हूँ तो। Basically, as brother already introduced me, I'm basically from a Hindu family in और भाई Kerala. अबू ने पहले ही मेरा परिचय दिया है कि मैं भारत के एक हिंदू परिवार से आता हूँ। Very staunch, conservative Hindu, staunch idol worshipper from childhood. और मेरे बचपन से ही बहुत ही कट्टरपंथी हम मूर्ति पूजक थे। And even when I studied in a Catholic school, I would always put at least two temples sandalwood paste before I used to go to the school there. और इसके बावजूद कि मैं एक मसीह या कैथलिक स्कूल में पढ़ा, उसके बावजूद भी वहां जाने से पहले मैं दो वो जो टीके मानो अपने सिर पर लगा कर जाता था। That means actually before going to the school, I'd be visiting two temples and ओ, ओके। putting the sandalwood paste and with great piety माफ would be. कीजिएगा, उसका मतलब स्कूल जाने से पहले मैं दो मंदिरों में जाकर दो जगहों से वो टीका लगाकर, चंदन का टीका लगाकर फिर स्कूल में जाता था, मानो मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ। And I'd be reciting Lalita Sahasranama, Vishnu Sahasranama and all daily and would be reading Bhagavad Gita, Vivekananda's philosophy, things like that. और कई जो उनकी जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें मैं हर दिन दोहराता था, और गीता को मैं पढ़ता था, और विवेकानंद की जो किताबें था, ऐसी कई चीजें मैं उनमें उन्हें पढ़ा करता था। And during my pre-degree, second pre-degree, that means equivalent to our plus two these days, I came to know the Lord
uh, Lord Jesus Christ in my life. और जब मैं 12वीं कक्षा में था तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना। I do not want to elaborate much more in the testimony. It's already there in the YouTube. If you want to hear it, you can probably search Dr. Sandeep Karnagapalli testimony English. So it's there in English. और मैं और इसे नहीं बताना चाहता। अगर आप मेरी गवाही पूरी सुनना चाहते हो तो आपको YouTube पर मिलेगी। डॉक्टर संदीप करुणागपल्ली अगर आप ढूंढोगे उनकी गवाही इंग्लिश में तो आपको वो मिल जाएगी। And of course, after I came to know the Lord, there was much opposition from my family, from my parents, and all. और जब मैंने प्रभु को जाना तो मेरे माता पिता के द्वारा बहुत ज्यादा मैंने विरोध को सहा। And I was not, after the pre-degree, after the plus two, before the MBBS admission, those 4 to 6 months, I was under kind of house arrest in my home here. और मेरे 12वीं कक्षा के बाद और एमबीबीएस डिग्री में प्रवेश लेने से पहले लगभग 4 से 6 महीने मानो मैं अपने ही घर में मुझे कैद करके बंद करके रख दिया था। Was not allowed to go to any church fellowship or to read the Bible or to read any Christian books. और मुझे किसी कलीसिया के संगति में जाने की अनुमति नहीं थी, मुझे बाइबल पढ़ने की अनुमति नहीं थी, कोई भी मसीही किताबें या कलीसिया में जाने की अनुमति मुझे नहीं थी। As a last resort, they took me to a psychiatrist to see if I can be hypnotized and brought back to Hinduism. और आखिर में उन्होंने वो मुझे एक हिप्नोटिस्ट के पास लेके गए, एक मनोवैज्ञानिक के पास लेके गए कि कम से कम उसके द्वारा मुझे सम्मोहित करके मानो वापस मुझे वो हिंदू बना सके। Ironically, now Lord has allowed me to become a psychiatrist now. और आज प्रभु ने अनुमति दी है कि मैं खुद एक मनोवैज्ञानिक बन पाया। And yeah, so I mean, actually, unknowingly, some medicine was given to me without my knowledge in some overdose unknowingly, and there was some, muscular spasm all over the body and things like that. Just the Lord took me through to understand, how people in many parts of the world are suffering because of Christ's name. और अनजान तौर पर मुझे दवाई को ज्यादा मात्रा में दवाई देने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होने लगी और मैंने कुछ मात्रा में उस तकलीफ को, उस पीड़ा को सहा जो लोग संसार के अलग अलग जगहों में मसीह के नाम की वजह से पीड़ा सहते हैं। I know that in North India and in many parts of the world, many people are undergoing much persecution compared to which I have undergone nothing. मैं जानता हूं कि उत्तर भारत में और संसार के अन्य जगहों में लोग बहुत ज्यादा सताव का सामना कर रहे हैं जिनकी तुलना में मैंने तो कुछ भी नहीं सहा है। And God has given me a wife, Dr. Srigala, my dear wife Srigala. She also, suffered a lot from the house for her faith. और परमेश्वर ने अपने प्रेम में मुझे एक पत्नी दी है जो डॉक्टर श्रीकला है और उसने भी उसके घर में उसके विश्वास के लिए बहुत सताव को सहा। She was also beaten up and, hair being pulled and, beaten with big stick by her father and brothers only, but out of their love and concern for her. और उसके पिता और उसके भाइयों के द्वारा भी उसे भी मारा गया, पीटा गया, उसके बाल खींचे गए, बड़े लकड़ी से उसे मारा गया और उनके प्रेम की वजह से उन्हें जो उनकी चिंता थी उसी वजह से उन्होंने ये सब किया। Yeah, so like that, and sometimes actually, during my MBBS days and all, there would be so much of shortage of money that I'd be walking long distances because I may not have money enough to to catch the bus that time. और उस समय जब मैं अपनी एमबीबीएस कर रहा था तो कभी कभी मेरे पास पैसे की इतनी कमी होती थी कि मुझे लंबी दूरी तक चलकर जाना पड़ता था क्योंकि बस लेने तक के मेरे पास पैसे नहीं होते थे। Not many times, but a few times, Lord allowed me to go through some difficulties like that. अब ये कई बार तो नहीं हुआ पर कुछ एक आध बार प्रभु ने मुझे ऐसे कठिनाइयों का भी सामना करने दिया। So once Sunday, when I was coming back from the church to 10 kilometers away from the medical college hostel, that 10 kilometers, that much paisa I didn't have in my pocket. So then I had to walk those 10 kilometers back to the hostel और once.
एक दिन जब मैं कलिसिया से वापस आ रहा था, तो आखिरी के जो 10 किलोमीटर है उतने पैसे मेरे जेब में नहीं थे कि उसका टिकट मैं दे सकूं। तो इसलिए वो अंतिम 10 किलोमीटर मुझे पैदल आना पड़ा मेरे हॉस्टल तक। because parents wouldn't send much money, just enough for the hostel fees, and some just for buying the books and all, so that they didn't want me to spend for any Christian activities or anything like that. क्योंकि मेरे माता पिता मुझे पैसा नहीं भेजा करते थे, केवल मेरी जो फीस है हॉस्टल की और जो किताबों का खर्च है उतना ही भेजते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी मसीह गतिविधियों में अपना पैसा खर्च करूं। And I just told all that, those things and all, nothing compared to much pain and persecution and scarcity that many brethren all over the world are going through. But just और I और testified, that's all. और ये केवल एक गवाही के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरे संसार में अलग अलग भाई जिस पीड़ा को, जिस दर्द को और जिस घटी को महसूस करते हैं, जिस जरूरत को महसूस करते हैं, उसकी तुलना में ये सब कुछ भी नहीं है। But looking back, I can say that that's all worth it for suffering for the Lord's name's sake. पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मसीह के नाम के लिए ये सब सहना वो इसके योग्य था। He who honors me, I will honor him. That is what the Lord says in First Samuel 2:30. और जैसे प्रभु ने पहला शमूएल 2:30 में कहा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। So, yeah, what I want to share from my heart from the word is that, as I was trying to say, even in my Hindu days, uh, God had given me desire to connect to Him, connect to the true God. और आज जो मैं साझा करना चाहता हूँ वचन से, मैं यही जो मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं अपने मसीह नहीं था, जब मैं हिंदू था, उस समय भी परमेश्वर ने मेरे अंदर एक इच्छा दी थी कि मैं सच्चे परमेश्वर के संपर्क में आऊं। एक इच्छा मेरे अंदर थी। Even while bowing before the idols in the temple, there was a inner yearning to connect to the true God beyond all these idols and deities. और मंदिरों में जब मैं मूर्तियों के सामने झुका करता था, उस समय में भी मेरे मन में अंदर से एक पुकार थी कि ये मूर्तियों से बढ़कर भी, इन देवी देवताओं से बढ़कर भी सच्चे परमेश्वर से किसी ना किसी तरीके से मेरा संपर्क हो। And Lord in His mercy sought after me and He saved me, redeemed me. और प्रभु ने अपनी दया में मुझे खोजा और उसने मेरा उद्धार किया, उसने मुझे छुड़ाया। And I see the tremendous yearning in the heart of God for fellowship with us. और मैं देखता हूँ परमेश्वर के हृदय में जो बड़ी लालसा है हमसे संगति रखने की। Our desire to have fellowship with the Lord is actually nothing compared to how much the Lord desires to have fellowship with us. हमारी जो इच्छा या लालसा है प्रभु से संगति करने की, वो परमेश्वर की जो इच्छा है या लालसा है हमसे संगति करने की, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। One verse which has always blessed my heart for many years, which I've shared many times in many places, is here in John 17. एक वचन जिसने कई वर्षों से मेरे हृदय को बहुत आशीषित किया है और जिसके विषय में मैंने कई बार कई जगहों पर साझा भी किया है, वो पाया जाता है यूहन्ना उसके 17 अध्याय में। There, Jesus is telling his desire to the Father, और यहाँ यीशु मसीह अपनी इच्छा को पिता को बता रहा है। and that is just before going to the Garden of Gethsemane. और ये गेत्सेमनी के बगीचे में जाने से बिल्कुल पहले वो कह रहा है। John chapter 18, verse 1, we read that he's entering the garden, that is Garden of Gethsemane. There was a और garden there. We read there. John और 18:1. यूहन्ना 18:1 में हम पढ़ते हैं कि वहां वो उस बारी में या उस बगीचे में प्रवेश कर ही रहा था ये बातें कहकर। But before going to the Garden of Gethsemane, what was the last desire that the Lord expressed to the Father? पर गेत्सेमनी के बगीचे में जाने से पहले वो कौन सी आखिरी इच्छा थी जिसका इजहार यीशु मसीह ने पिता से किया? Jesus says, I desire that. Jesus says there, I desire और some. ये और यीशु मानो कह रहा है कि मेरी एक इच्छा, मेरी एक लालसा है पिता। Yeah, that is in verse 24. और वो 24 वचन में है, Father, I desire हे पिता मैं चाहता हूं that they also, whom you have given me, कि वे भी जो मेरे साथ जिन्हें तूने मुझे दिया है, be with me where I am, कि वे भी मेरे साथ हो जहां मैं हूं, so that they may see my glory which you have given me,
कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, For you have loved me before the foundation of the world. क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। So the Lord wants us to be with Him where He is. और प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ वहां रहे जहां वो है। And of course, we know that after we die, we get to heaven if we are born again. और हम जानते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद अगर हमारा नया जन्म हो चुका है तो हम स्वर्ग जाएंगे। There we will be with the Lord forever in eternity. That's और the that's true. और वहां हम अनंत काल में प्रभु के साथ होंगे, समस्त अनंत काल के लिए, ये सच है। But before that, is that full desire of Jesus be fulfilled only there? पर क्या यीशु की ये चाहत, यीशु की ये इच्छा केवल वहीं पूरी होगी क्या? He desires that we be with Him even today, even now. उसकी चाहत ये है कि आज इस समय भी हम उसके साथ हो। He wants us to behold His glory. वो चाहता है कि हम उसके महिमा को देखें। That's what we read here, so that they may behold, they may see my glory. और यही हम इस वचन में भी पढ़ते हैं, ताकि वे मुझे मेरी उस महिमा को देखें। The Apostle John, who wrote this, saw the glory of Jesus, full of grace and truth, and और that's why he wrote this gospel. यूहन्ना जो था उसने यीशु के इस महिमा को देखा, अनुग्रह और सत्य से भरपूर था, और उसी वजह से उसने इस सुसमाचार को लिखा। We all know that verse in John, the same John's Gospel, chapter 1, verse 14. हम सब शायद उस वचन को जानते हैं, इसी यूहन्ना सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 14 वचन में। John is telling there that we beheld his glory. और यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि हमने उसकी महिमा देखी। The word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory. और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी। Glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. जैसे पिता के इकलौते की महिमा और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। When John and his brother James, they were all mending nets at the Galilean seashore, and Jesus is calling them, "Come, follow me." और जब यूहन्ना और उसका भाई याकूब उस गलील के किनारे पर जब अपने जाले को उसकी मरम्मत कर रहे थे, और तब जब उन्होंने सुना यीशु को कहते हुए कि मेरे पीछे हो लो। Jesus didn't have any halo around his head. उस समय यीशु के इर्द गिर्द, उसके सिर के इर्द गिर्द कोई ऐसी तेज रोशनी नहीं चमक रही थी। But Jesus' humility and love, that compassion, that spiritual authority, what was there? पर यीशु मसीह की नम्रता, उसकी प्रेम, उसकी दया और उसका आत्मिक जो अधिकार था, वो उन्होंने देखा। And somehow they were they were moved by the Holy Spirit to follow after Jesus. और किसी न किसी तरीके से पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में ऐसे काम किया कि वो यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे। And all those 3.5 years living with Jesus day and night, और उन they साढ़े saw तीन his वर्ष glory. सॉरी, द लास्ट पार्ट। They saw his glory those 3.5 years. और उन 3.5 वर्षों में दिन रात उसके साथ रहकर उन्होंने उसकी महिमा देखी। And they were with Jesus all the time. और वे हर समय यीशु के साथ थे। And now Jesus is going to heaven, और अब going to यीशु the cross, and then he would be resurrected, and then he will be ascending to heaven in a few days. और अब और अब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाला था। वो पहले क्रूस पर जाने वाला था, और फिर वहां से जी उठने के बाद कुछ ही दिनों में वो स्वर्ग में जाने वाला था। So those 3.5 years, Jesus had fellowship with them, very close walk and fellowship with them. और उन 3.5 वर्षों में उसका बहुत ही एक निजी, उसकी चाल और संगति शिष्यों के साथ यीशु की थी। But Jesus is desiring a deeper degree of fellowship with them hereafter, after going to the cross. पर And ये Mhm. यीशु की चाहत है कि क्रूस पर जाने से पहले और क्रूस पर जाने के बाद एक और गहरी संगति उसके शिष्यों के साथ हो। While he was there with them 3.5 years, he was with them, but he only had one human body and there was limitation. जब वो 3.5 वर्षों पर इस पृथ्वी में उसके उनके शिष्यों के साथ था, तो वो उनके साथ तो था,
पर क्योंकि वो एक ही मनुष्य शरीर में था तो कुछ सीमाएं उसकी थी। But after he resurrected and he ascended to heaven, he sent the Holy Spirit, and the Holy Spirit can dwell inside our spirit, and we can sense His presence and fellowship all the time if we are पर filled उस with the Holy Spirit. पर उसके पुनरुत्थान के बाद जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया तो तब उसने अपने पवित्र आत्मा को भेजा, और अगर हम पवित्र आत्मा से भर चुके हैं तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के अंदर निरंतर हम उस संगति का एहसास कर सकते हैं। So He wants us to be with Him where He is. और यीशु चाहता है कि जहां वो है वहां हम भी उसके साथ हो। Uh, Truly speaking, He is there in the right hand of the Father in the third heaven in और paradise. वास्तविकता में देखा जाए तो स्वर्ग लोक में तीसरे स्वर्ग में वो पिता के दाहिनी ओर है। But in order that we experience that heavenly presence now, God has sent the Spirit of heaven, the Holy Spirit, into our hearts. पर ताकि हम उस स्वर्गीय उपस्थिति का या उस स्वर्गीय वातावरण का आज एहसास कर सके, आज अनुभव ले सके, इसी वजह से परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है। When we repent of our sins and when we surrender ourselves totally to Him, जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं और जब हम संपूर्ण तौर पर अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हैं, तो when we hand over the Lordship, the mastery of our life unto the Lord Jesus for और the जब हम अपने जीवन का प्रभुत्व जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं, तो when we say that, Lord, I do not want to live for me, myself, but for you. जब हम कहते हैं हे प्रभु मैं अपने आप के लिए नहीं जीना चाहता, केवल तेरे लिए जीना चाहता हूं। And then, for the first time when we surrendered like that, the blood of Christ cleansed our conscience. और जब पहले बार हमने अपने आप को इस प्रकार से समर्पित किया था, उस समय मसीह के लहू ने हमारे विवेक को शुद्ध किया था। And the Holy Spirit of God from heaven uh, came and began to indwell our spirit. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वर्ग से आकर हमारे आत्मा के अंदर रहने लगा। And the Holy Spirit helps us to sense the atmosphere of heaven, presence of Jesus. और पवित्र आत्मा सहायता करता है कि हम उस स्वर्ग के वातावरण का एहसास कर पाए या यीशु की उपस्थिति को हम महसूस कर पाए। So, in order that we have the experience of dwelling with Him, being with Him in the heavenly presence, the Holy Spirit has to flood our hearts, fill us. और अगर हमें उस स्वर्ग का एहसास होना चाहिए, उस स्वर्गीय वातावरण का एहसास होना चाहिए, तो पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों को भरना होगा, मानो उसकी बाढ़ हमारे हृदयों में आनी होगी। And how can we be flooded with the Holy Spirit? और कैसे मानो पवित्र आत्मा की वो जो बाढ़ है हमारे हृदय में आ सकती है? The Holy Spirit, the enemy of the Holy Spirit is what we read in Galatians 5:17. और पवित्र आत्मा का जो शत्रु है उसके विषय में हम पढ़ते हैं गलातियों 5:17 में। Galatians 5:17, we read that the Spirit sets its desire against the flesh, and the flesh sets its desire against the Spirit. The flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. और Galatians 5:17. गलातियों 5:17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। It is not our body who is the enemy of the Holy Spirit. अब जब हिंदी में शरीर लिखा है तो वो कोई हमारा शरीर नहीं है जो पवित्र आत्मा का शत्रु है। Our body is the temple of the Holy Spirit. First हमारा Corinthians 3:16. और पहले कुरिन्थ में जैसा लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। But we have a flesh that is, as Brother Zach simply puts it, our self-will. That is the enemy of the Holy Spirit. पर हमारे शरीर में एक देह है, या जैसे हिंदी में शरीर जिसे लिखा गया है, भाई जैक समझाते हैं कि वो हमारे स्वयं की इच्छा है, और हमारी स्वयं की ये जो इच्छा या हमारा जो स्वयं है वो पवित्र आत्मा का शत्रु है। And that flesh, that is our self-will, that is like a curtain that blocks us from the presence of God. और हमारा शरीर अर्थात हमारा जो स्वयं है, जो पवित्र आत्मा का शत्रु भी है, वो एक पर्दे के समान है जो परमेश्वर के साथ हमारे संपर्क को मानो उसके बीच में एक बंधन की तरह खड़ा है, एक अवरोध की तरह खड़ा है। And from that flesh, all the anxiety, all the impurity, all the anger, all the bitterness, all sins
coming from that flesh, that और self will. और हमारा जो स्वयं है या हमारे स्वयं की जो इच्छा है, उसी से जो गुस्सा है, जो अशुद्ध विचार है, जो लोगों And से जलन है या गुस्सा है, गुस्सा है, ये या कड़वाहट है, ये सारी चीजें सारे पाप उसी हमारे स्वयं से आते हैं। many times we are worried and anxious. कई बार हम चिंता करते हैं, हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। And so many we want to overcome sin, and we want to overcome lust and anger and bitterness and all. और हम पाप पर विजय पाना चाहते हैं, हम लालसाओं पर, हम गुस्से पर विजय पाना चाहते हैं, कड़वाहट पर विजय चाहते हैं। But the place where we are free from all this is actually the heavenly presence of Jesus. पर जिस स्थान में हम इन सब चीजों से स्वतंत्र हो जाते हैं, वो है यीशु मसीह के स्वर्गीय उपस्थिति में। If we dwell in the presence of the Lord all the time, then we'll be able to overcome that. The Holy Spirit in us will be able to overcome all that. अगर हम प्रभु की उपस्थिति में निरंतर वहां वास कर पाए, तब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम उन चीजों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। But this flesh is always blocking the way. That पर flesh, my will. I want to do things my way. I want to take the decisions. I want to be the center of my life. That is always blocking the way to the presence of God. पर हमारा जो शरीर है, हमारे जो स्वयं या स्वयं की इच्छा है, वो हमारे परमेश्वर के पास जाने वाले मार्ग को रोकता है। और हर समय, क्योंकि मैं अपनी इच्छा करना चाहता हूं, मैं अपने निर्णय खुद लेना चाहता हूं, और ये जो हमारा स्वयं है वो परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे मार्ग में एक अवरोध बन जाता है। In the Old Testament, this is symbolized by the tabernacle. और पुराने नियम में इसका जो एक चित्रण है, वो हम उस निवास मंडप में देखते हैं। And in the tabernacle, the spirit is symbolized by the most holy place. और Uh, परमेश्वर के निवास स्थान में हम देखते हैं कि जो आत्मा है, उसका प्रतीक जो परम पवित्र स्थान है वो है। Many of you would be very familiar with those, with those pictures, I hope. और मैं सोचता हूँ कि आप में से कई लोग शायद उन चित्रों को जानते होंगे। Yeah, I hope you are able to see the picture of the tabernacle where there is this outer court, the large rectangle outer court. ब्रदर, वी कैन सी जस्ट द फाइल्स, वी कांट सी द एग्जैक्ट Oh, इमेज। okay, okay. You're okay, okay. You're not able to see, yeah? Okay, okay. Let me just try. Yeah, sorry. Yeah. यस This यस। the large rectangular court is the outer court, which symbolizes our body that is visible for everyone. और ये जो बाहरी आंगन आपको दिख रहा है, ये बाहरी आंगन हमारे शरीर को दर्शाता है। ये वो हिस्सा है जो सब लोग देख पाते हैं। Just like our anatomical body, our face and hands and all, that is tangible, that is visible to people. That is the outer court, which is visible to everyone. और ये बाहरी आंगन जो है, ये बिल्कुल हमारे बाहरी शरीर के समान है। हमारा हाथ है, हमारा मुख है, ये सब लोग देख पाते हैं इसे। And beyond that, there is this holy place and most holy place. और उससे आगे जाकर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान है। Let me just see whether, yeah. Mhm. Yeah, here this is the outer court. Then the holy place is here, that is symbolizing our soul, and और then the most place, the cubicle place at the end, that is और the that is symbolizing our spirit. और ये जो बाहरी आंगन है, उसके अंदर ये जो छोटी जगह है, उसमें हम सबसे पहले उस पवित्र स्थान को देखते हैं जो हमारे प्राण को दर्शाता है। और उस परम पवित्र स्थान के भी अंदर एक और छोटी जगह है जो परम पवित्र स्थान है, जो हमारे आत्मा को दिखाता है। Yeah, I'll try to share another picture where that is the tabernacle. Yeah, this has more of a picture. Yeah. Yeah, so here we see the outer court, holy place, and the holy of holies. There is a most holy place. और एक और चित्र में दिखा रहा हूं, यहां भी हम देखते हैं एक बाहरी आंगन है, एक पवित्र स्थान है और एक परम पवित्र स्थान है। And this is our spirit where the Holy Spirit comes and dwells when we become born again.
और ये पवित्र परम पवित्र स्थान वो स्थान है जहां हमारे नए जन्म के उपरांत पवित्र आत्मा आकर वास करता है। And this is that thick curtain, the thick veil that blocks, that separates the most holy place from the holy place. और यहाँ एक बहुत मोटा सा पर्दा है जो हमारे मार्ग को बंद करता है, और या हम कह सकते हैं जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक विभाजन के तौर पर खड़ा है। Jesus also came in our flesh. यीशु मसीह भी हमारे ही देह देह में, मतलब वो देहधारी हुआ और हमारे ही शरीर में आया। He came uh, in the same flesh that as we have, but there was no sin in him. और वो उसी शरीर में उसी देह में आया जो हमारा है, पर उसमें कोई पाप नहीं था। And he always surrendered his will to the Father. He came in our flesh. That means he had a will of his own, but he always denied that will and always surrendered to the Father's will. और उसने हमेशा अपनी इच्छा का इनकार करते हुए, उसकी एक इच्छा तो थी, पर उसने अपने इच्छा का इनकार करते हुए वो पिता की इच्छा को समर्पित हो जाता था। That is what we read in John 6:38. और यही हम यूहन्ना 6:38 में पढ़ते हैं। We have heard that many times from Brother Zach. हमने भाई जैक से इसे कई बार सुना है। There is a one-line autobiography of of Jesus, as Brother Zach says. और जैसे भाई जैक कहते हैं, एक पंक्ति में हम यीशु मसीह के जीवनी को देख सकते हैं। For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए। So he had a will of his own as a human being, इस when he came as a man. इसका मतलब मनुष्य होने के नाते उसके अंदर एक इच्छा थी, एक स्वयं की इच्छा थी, क्योंकि वो एक मनुष्य बनकर आया था। He is Almighty God, but he emptied himself of his power and attributes and became a man. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पर उसने अपने आप को खाली कर लिया, उस परमेश्वर के जो सौभाग्य थे और जो उसके गुण थे उनसे उसने खाली करके अपने आप को मनुष्य बनाकर वो आया। And in when he was in all eternity in heaven, before coming to earth, his will and the Father's will was the same. और इस पृथ्वी पर आने से पहले जब वो स्वर्ग में था, तो उसकी इच्छा और उसके पिता की इच्छा एक जैसे थी, समान थी। He was the Word of God. वो परमेश्वर का वचन था। But the Word became flesh and came in a human form. पर वचन देहधारी हुआ और मनुष्य रूप लेकर आया। And Jesus also had a will of his own, which was against the Father's will. और यीशु की एक स्वयं की भी इच्छा थी जो पिता की इच्छा के बिल्कुल विपरीत थी। But he always said, "Not my will, but your will, O Father." और वो हमेशा कहता था कि मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा होने दे प्रभु। That is what he cried out even at the end, Garden of Gethsemane. और यही चीज उसने गेत्सेमनी के बगीचे के अंत में भी यही उसने पुकारा था। Matthew 26:39 and all, we read there. मत्ती 26 उसके 39 वचन में हम ये पढ़ते हैं। Not my will, O Father, but your will. और वो कहता है, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने दे। And Hebrews 10:19 and 20, we read that what is this flesh that Jesus had? और इब्रानियों 10 उसके 19 और 20 वचन में हम पढ़ते हैं कि ये शरीर या ये देह क्या था जो यीशु मसीह के पास था। There we read that the veil of the veil in the tabernacle is symbolized by Jesus' flesh. और यहाँ लिखा है कि निवास स्थान का वो जो पर्दा है वो यीशु के शरीर को दर्शाता है। We read that Jesus inaugurated a new and living way into the most holy place through the veil that is his flesh. और हम देखते हैं कि यीशु ने लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मानो उद्घाटन किया हो, उस पर्दे के द्वारा, अर्थात अपने शरीर में से होकर। So what we were thinking was that we always wants to dwell in the Father's presence, in the Lord's presence. और हम भी जो सोच रहे थे कि हम हमेशा पिता की उपस्थिति में होना चाहते, प्रभु की उपस्थिति में होना चाहते। Jesus' desire is that they whom the Father has given me be with me where I am. और यीशु की इच्छा, यीशु की लालसा क्या है कि वे जिन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है वे वहां हो जहां मैं हूं। And the Father's presence and the Lord Jesus' presence is in the third heaven. और पिता की उपस्थिति और प्रभु यीशु की उपस्थिति वो तीसरे स्वर्ग में है।
And this most holy place is a picture of heaven. और ये परम पवित्र स्थान ये एक स्वर्ग का चित्र है। That is what we read in Hebrews 9:24, the previous chapter, Hebrews 9:24. और इसी बात को हम इब्रानियों 9:24 में पढ़ते हैं, पिछले अध्याय में। For Christ did not enter holy place, it is written over there, but the Greek word is hagias, which should be translated as most holy place. So Christ did not enter the most holy place made with hands, which was just a mere copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. और वहां लिखा है क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, और मूल भाषा में अगर हम देखें तो ये परम पवित्र स्थान होना चाहिए, तो ये वचन पढ़ता है क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए परम पवित्र स्थान में, जो सच्चे परम पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। So just like the high priest once in a year, in Leviticus 16, we read about the high priest once in a year entering the most holy place with the blood of bulls and goats. और हम देखते हैं लेव्य व्यवस्था 16वें अध्याय में कि जो इसराइल का महायाजक होता था, वो साल में केवल एक बार जो बैल है, जो बकरियां है, उनके लहू को लेकर उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। But here, Jesus, he is the high priest in after the order of Melchizedek. That is what we read in Hebrews. पर हम इब्रानियों में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति के अनुसार एक महायाजक है, which is higher than the order of Aaronic priesthood, Levitical priesthood. और हारून का जो याजक पद था, या जो लेवी गोत्र का याजक पद था, उससे भी ऊंचा याजक पद यीशु मसीह का है। And he entered the most holy place with his own blood, verse 12, Hebrews 9:12. और इब्रानियों 9:12 कहता है कि उसने परम पवित्र स्थान में अपने लहू के द्वारा प्रवेश किया। Yeah, it should be translated most holy place there. Hagias is the Greek word over there. और वहां भी इब्रानियों 9:12 में भी पवित्र स्थान नहीं, बल्कि मूल भाषा के शब्दों के अनुसार परम पवित्र स्थान होना चाहिए। So when he ascended to the third heaven into the Father's presence, actually he was entering the most holy place as Aaron entered once a year, as per और Leviticus 16. और जब वो पिता के उपस्थिति में गया, उस परम पवित्र स्थान में गया, तो वो बिल्कुल उस महायाजक के समान था, या हारून के समान, जो एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, वैसे यीशु मसीह ने वहां प्रवेश किया। But all throughout his life, there was a entering into the Father's presence in Jesus' life. पर उसके संपूर्ण जीवन भर पिता के उपस्थिति में प्रवेश करना यीशु के जीवन में मौजूद था। And that is what we read about in Hebrews 10:19 and 20. और उसी के बारे में हम इब्रानियों 10, 19 और 20 में पढ़ते हैं। All throughout his life, he was in the Father's bosom. He was in the Father's presence. उसके जीवन भर वो पिता की गोद में, पिता के उपस्थिति में मानो था। John 1:18, we read that he who is in the bosom of the Father, he has explained the Father. और which verse? John 1:18. और यूहन्ना 1:18 में हम पढ़ते हैं कि जो पिता की गोद में है, वही पिता को समझा सकता है। Although he came apparently from the bosom of the Father, he came to the earth, but even while on earth, spiritually speaking, he was still in the bosom of the Father, even while he was on the earth. और इसके बावजूद कि हमें दिखाई पड़ता है कि यीशु मसीह तो पिता के गोद से मानो आया हो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आत्मिक तौर पर वो निरंतर अपने पिता के गोद में ही था। How, with a human will of his own coming in our flesh, how can he dwell in the Father's presence? अब कैसे यीशु मसीह जब एक हमारे ही शरीर में आया, और उसकी भी एक मनुष्य की इच्छा थी, कैसे उसने पिता के उपस्थिति में निरंतर वो जिया। That is what we read the secret in John 6:38. और उसी का रहस्य हम यूहन्ना 6:38 में पढ़ते हैं। I did not come to do my own will, but the will of the Father who sent me. मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की, अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। And John 5:30 also we read the same thing. और यूहन्ना 5:30 में भी हम उसी बात को पढ़ते हैं। There also we read, I can do nothing on my own initiative. हम पढ़ते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, As I hear, I judge, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, and my judgment is just, और मेरा न्याय सच्चा है, because I do not seek my own will, but the will of him who sent me. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूं।
Even verse 19 and 20 also says the same thing. I can do nothing of my own unless it is something I see my father doing. और 19 और 20 वचन में भी वही लिखा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पिता पुत्र को कुछ करते हुए नहीं देख लेता। So, coming in our flesh, how could Jesus dwell in the bosom of the Father all the time? और हमारे शरीर में आकर या हमारे जैसे शरीर को धारण करके कैसे यीशु मसीह निरंतर पिता के गोद में रह सकता था? Because all throughout his life, there was a rending of this veil which separated him from the Father's presence. That veil was always being rent in Jesus' life. क्योंकि उसके जीवन भर वो उस पर्दे को फाड़कर, जो अपनी इच्छा थी उसे फाड़कर पिता की उपस्थिति में वो प्रवेश कर रहा था। Even at the last breath of his life, he surrendered everything to the Father. उसके जीवन के अंतिम श्वास तक भी उसने सब कुछ पिता के हाथ में सौंप दिया। And the Father attested that that veil in Jesus' life is completely rent now. और पिता ने भी इस बात का मानो प्रमाण पत्र दिया हो कि यीशु के जीवन का जो वो पर्दा था वो पूर्ण तौर पर अब फट चुका है। And how did he do that? और उसने ये कैसे किया? Matthew 27, verse 51. मत्ती उसके 27 अध्याय 51 वचन में हम पढ़ते हैं। When verse 50 we read, Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. और 50 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से पुकार कर अपनी आत्मा को उसके हाथ सौंप दिया। And verse 51, and behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom. Verse 51. और माफ कीजिएगा, मत्ती 27 उसके 51 में लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। So in Jesus' life, that veil, his self-will, veil is the flesh. That is what we read in Hebrews 10, 19 and 20. और यीशु के जीवन में उसका जो वो शरीर है, वो पर्दा जो है, वो उसकी स्वयं की इच्छा थी, जो हमने इब्रानियों 9 उसके 19-20 में पढ़ा। And Jesus always said no to his will and yes to the Father's will. और यीशु ने हमेशा अपनी इच्छा को नहीं और पिता की इच्छा को हाँ कहा। In other words, he always became a zero before the Father. दूसरे शब्दों में हमेशा वो पिता के सामने एक शून्य बनकर रहा। Because actually, that self-will is what is the I in our life. I am there. I am living. That I is that self-will. क्योंकि हमारे स्वयं के जीवन में मेरा स्वयं, मैं हूं, मैं ये कर रहा हूं, वही है जो हमेशा आगे बढ़कर आता है। I want to think my thoughts. I want to speak my words. I want to do things my way. मैं अपने विचारों को सोचना चाहता हूं, मैं अपने शब्दों को कहना चाहता हूं, चीजों को अपने ही तरीके से करना चाहता हूं। And that my will is blocking the way from the Father's presence. और जो मेरी इच्छा है वो पिता के उपस्थिति से मार्ग को बंद करके रख देती है। And Jesus has now inaugurated a way for us to walk by. और अब यीशु मसीह ने हमारे लिए एक मार्ग का मानो उद्घाटन किया है जिससे हम चल सकते हैं। That is what we read in Hebrews 10, 19 and 20. He inaugurated a way. और वही हमने इब्रानियों 10 उसके 19 और 20 में पढ़ा कि उसने एक मार्ग का उद्घाटन, ऐसा इंग्लिश में लिखा है, किया है। Suppose a cabinet minister came and inaugurated a highway, but nobody is using that. What a wastage of money. और मानकर देखिए, एक बड़ा कैबिनेट मंत्री आकर किसी हाईवे का उद्घाटन करके जाता है, पर कोई उस हाईवे का अगर इस्तेमाल ही नहीं करे तो कितना पैसे का मानो हमने व्यर्थ में उसे खर्च किया है। Jesus inaugurated that way, shedding his own blood, even the last drop of blood. But if we are not walking in that way of the cross, oh, what a shame, what a wastage. और अगर यीशु मसीह ने आकर उस मार्ग का उद्घाटन किया है और अपने लहू के द्वारा उसके लहू का अंतिम बूंद भी उसने उसके लिए बहा दिया, और अगर हम उस मार्ग में अपने आप के प्रति मरने के मार्ग में उस क्रूस के मार्ग पर नहीं चल रहे, तो कितने बड़े ये शर्म की बात है। It is when we walk this way of the cross, then we enter the most holy place, where we have the fellowship with Jesus. जब हम इस क्रूस के मार्ग पर चलते हैं तब हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं जहां यीशु के साथ हमारी संगति होती है। When we are walking daily in our life, uh, denying ourselves and say that I do not want to do my will, I want to do your will. जब हम प्रतिदिन अपने जीवन में चल रहे हैं और ये कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं करना चाहता वरन तेरी इच्छा करना चाहता हूं,
when we humble ourselves and become a zero before Him, जब हम अपने आप को नम्र करके उसके सामने शून्य बन जाते हैं, then the Holy Spirit, then only the Holy Spirit can flood our hearts. तब भी पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को मानो एक बाढ़ के समान भर सकता है। Because actually, the Holy Spirit and flesh, they are in opposition to each other. क्योंकि पवित्र आत्मा और हमारा स्वयं जो है वो एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के शत्रु है। That is what we read in Galatians 5:17. वही हमने गलातियों 5:17 में पढ़ा। And we have a willpower where we can choose to yield to the prompting of the Holy Spirit or to the prompting of the flesh. और हमारे अंदर एक स्वयं की सामर्थ्य है, जो स्वयं शक्ति है, जो या तो हम पवित्र आत्मा की बात मान सकते हैं, या हमारे शरीर जो हमें उकसाता है उसकी बात मानकर हम वो कर सकते हैं। That is symbolized by the golden altar that would be laid just before the veil और of temple. वो जो सोने की एक वेदी थी जो बिल्कुल पर्दे के पहले थी, उसको वो दर्शाती है। That is, we read about that in Exodus 30 verse 6. हम उसे निर्गमन 30 के 6 वचन में पढ़ते हैं। So there, that willpower, that is a decision-making capacity God has given us. और वो जो हमारी इच्छा शक्ति है, जो निर्णय लेने की क्षमता प्रभु ने हमें दी है, Either we can yield to the prompting of the Holy Spirit and become humble ourselves and be a zero. या तो हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर अपने आप को नम्र करके शून्य बनना चुन सकते हैं। Then the Holy Spirit can flood our hearts and we can enter the most holy place in our life. तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में एक बाढ़ के समान आ सकता है और हम अपने जीवन में परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। That means the Holy Spirit floods our heart, and it is equivalent to we are entering the heavenly throne of heavenly presence of Jesus. इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे मन को पूर्ण तौर पर भर देता है और हम स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर बैठते हैं। But always the choice is there. But suppose if I become proud and if I choose to do my own way and yielding to the prompting of the flesh, then what will happen? Then the power of the Holy Spirit will be dwindling in my life. पर जब मैं घमंडी होता हूं, या मैं अपनी चीजें करने का चुनाव करता हूं, या अपनी इच्छा करने की चुनाव करता हूं, तब क्या होगा? तब पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन से कम और कम होने लगेगी। The presence of the Lord won't be there. परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं होगी। In the presence of God, there is fullness of joy. That is what we read in Psalm 16, verse 11. और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, वही हम भजन संहिता 16:11 में पढ़ते हैं। So when we are humble, when we are a zero before the Lord, the Holy Spirit will flood our hearts and we'll be full of the joy of the Lord all the time. और जब हम नम्र हैं और परमेश्वर के सामने शून्य होते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें निरंतर परमेश्वर के आनंद से हमारे हृदय को एक बाढ़ के समान भरता रहेगा। And the Holy Spirit floods our heart with the love of God. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय को परमेश्वर के प्रेम से भर देता है। Romans 5:5, we read that. रोमियो 5:5 में हम इसे पढ़ते हैं। And this uh, flooding of love will cast away all the fears from our heart. और प्रेम के द्वारा एक बाढ़ के समान भरे जाना, ये हमारे हृदय से सारे डरों को निकाल देगा। The Holy Spirit floods our spirit and overflows into our soul. और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को भर कर उससे भी आगे हमारे प्राण तक वो उभर कर बहता है। That means actually our soul consists of our thoughts and our emotions and our decisions and all. और हमारे प्राण में हमारे विचार है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे निर्णय है। And when we are not filled with the Holy Spirit, there will be fear and anxiety, jealousy, bitterness, impurity, all kinds of sinful uh, thoughts and emotions and all would be flooding our soul. और जब हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाते, तब हमारे अंदर पाप भरे वो जो विचार है, जो बुराई है, जो गुस्सा है या कड़वाहट है, ये हमारे प्राण को भर देंगे। But the moment we look to Jesus and go His way of the cross and die to ourselves and be filled with the Holy Spirit, what will happen? पर जिस क्षण हम यीशु को देखते हैं और उसके क्रूस के मार्ग पर चलते हैं और अपने आप के प्रति मरते हैं, तब क्या होगा? And all these negative emotions, the perfect love casts out fear. That is what we read in 1 John 4:18. और ये जो सारी नकारात्मक भावनाएं हैं, पहला यूहन्ना 4:18 में हम पढ़ते हैं, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। So not only fear, but all the negative thoughts and emotions like fears and anxiety and jealousy, bitterness, impure thoughts,
all those things will be flushed out, will be displaced by the flooding of the Holy Spirit into our soul. और केवल भय ही नहीं, सारी जो नकारात्मक चीजें हमारे अंदर है, चाहे वो कड़वाहट हो, चाहे अशुद्ध विचार हो, चाहे वो चिंताएं हो और डर हो, ये सारी चीजें हमारे प्राण से मानो निकाल दी जाएगी जब पवित्र आत्मा से वो भर जाएगा तो। And the Holy Spirit will be overflowing through our body also. और पवित्र आत्मा हमारे शरीर से भी बहकर उभर कर और बहेगा। That means through our words and through our deeds, through इस, our face, इसका looks. मत, इसका मतलब हमारे शरीर, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हम जैसे देखते हैं हमारे मुख के द्वारा। So then, then we will be with the Lord's presence when we are a zero before the Lord. Then we'll be with Him all the time. तब हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे, जब हम उसके साथ उसके उपस्थिति में होंगे तो निरंतर हम उसके साथ होंगे। And that is His desire that we be with Him all the time. In और the moment. यही उसकी चाहत भी है कि हम निरंतर उसके साथ उस परम पवित्र स्थान में हो। That means actually even while we are walking on the earth, we can be in the presence of the Lord in the heaven with इसका the मतलब presence of the Holy Spirit. इसका मतलब तब भी जब हम इस पृथ्वी पर है तो हम उसके उपस्थिति में हो सकते हैं पवित्र आत्मा के भरपूरी के द्वारा। And He wants to speak to our hearts. He wants to hear from us. A loving conversation should be happening in और our spirit with the bridegroom. और वो हमारे हृदयों से बात करना चाहता है, एक प्रेम पूर्ण बातचीत हमारे दूल्हे के साथ हमारे आत्मा में जारी रहनी चाहिए। Such a heavenly life is what the Lord is desiring for each और one of us. ऐसे स्वर्गीय जीवन जो है परमेश्वर अपने बच्चों के लिए चाहता है। Shall we conclude the word of prayer? और आइए हम प्रार्थना करके अंत करेंगे। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father. प्रभु यीशु और स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद। Lord Jesus, help us to see your footsteps and walk this way. प्रभु यीशु हमारी सहायता करके हम तेरे पद चिन्हों को देखकर तेरे मार्ग पर चल पाए। Lord, I want to die to myself, Lord, प्रभु मैं अपने आप के प्रति मरना चाहता हूँ प्रभु, and flood my heart with your Holy Spirit. और मेरे हृदय को तेरे पवित्र आत्मा से एक बाढ़ के समान तू भर दे। Help me to experience your presence, Lord. और मैं मेरी सहायता करके मैं तेरे उपस्थिति का एहसास कर पाऊं। And help me to have that deep fellowship with you all the time. और मेरी सहायता करके तेरे साथ एक गहराई की संगति निरंतर मेरी बनी रहे। And to overcome all sin, Lord. और मैं सारे पाप पर विजय प्राप्त करूं। And in case I fall, Lord, help me to come back immediately and to have a clean conscience and to continue to walk with you. और अगर मैं कभी गिर जाऊं प्रभु तो मेरी सहायता करके मैं तुरंत तेरे पास लौट कर आऊं, मन फिराऊं और तेरे साथ चलना मैं जारी रखूं। Help us never to be discouraged, Lord. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम कभी निराश ना हो। Flood our hearts with your Holy Spirit all the time, Father. हमारे हृदयों को तेरे पवित्र आत्मा से निरंतर तू बाढ़ के समान भर दे हे पिता। Thank you, Heavenly Father, for your word. Help us, Father. धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए हमारी सहायता कर हे पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Thank you. Thanks for patiently listening to me. Thank you, dear brothers and sisters. और बड़े धीरज से मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका धन्यवाद।